خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے. خداوند بھلا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. ان بچوں کو میں دیکھ کے بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے. خداوند بیٹا آپ سب کو بڑی برکت دے. آپ نے خداوند کے لیے ٹائم نکالا ہے اور خداوند آپ کے اس ہدیے کو اپنے سامنے رکھتا ہے جو آپ نے ٹائم کی صورت میں خداوند کو دیا ہے. خدا صرف ہمارے ہدیے جو ہم چندہ ڈالتے ہیں یا ہدیے دیتے ہیں چرچ میں یا ہم شکر گزاری دیتے ہیں, خدا اسی سے خوش نہیں ہوتا. خدا آپ کے ٹائم سے بھی خوش ہوتا ہے جو آپ خدا ان کو دیتے ہیں. میرا خیال ہے بچوں کا شاید کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے شاید. تمام وہ بہن بھائی جو مجھے یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہیں, آپ سب کو بھی میرا بہت زیادہ سلام. خداوند آپ سب کو برکت دے. جیسے کہ آپ سب لوگ جان رہے ہیں کہ ہماری جو 10 کمانڈمنٹس کی سیریز چل رہی ہے اور آج ہمارے سیکنڈ کمانڈمنٹ کے اوپر ہم خداوند کے کلام کو سنیں گے. اور اس سے پہلے کہ میں آج کے کلام کی طرف بڑھوں, میں خدا سے پاک روح سے اپنی رہنمائی کے لیے اور اپنی قوت اور اپنی طاقت کو مانگوں گا, کیونکہ میں اس لائق نہیں اپنے آپ کو سمجھتا نہ میں ہوں, اور میں کمزور ہوں کیونکہ میں ایک فانی جسم کے اندر ہوں. لیکن جب پاک روح ہمارے اندر سرایت کرتا ہے, جب پاک روح ہمارے اندر آتا ہے, جب آ کے ٹھہر جاتا ہے, تو پھر ہم زور اور قوت پاتے ہیں اس طرح جس طرح پترس نے قوت پائی. پھر اس نے دلیری کے ساتھ واز کیا, کیونکہ وہ نہیں تھا, اس کے اندر پاک روح تھا. ہاللیلویہ. چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند سے طاقت, ہمت اور قوت مانگے. خداوند پاک خدا, میں خداوند سے شکر گزاری کرتا ہوں تیری محبت کے لیے, تیرے پیار کے لیے, تیری شفقت کے لیے. پہلے خداوند دی اس ساری نعمتوں کے لیے, برکتوں کے لیے, بخششوں کے لیے. خداوند آج کے اس دن کے لیے خدا جو آپ نے ہماری زندگی میں بخشا, میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں. خدا آپ سے ہمت اور طاقت مانگتا ہوں, پاک روح کی خدا میں رہنمائی کو مانگتا ہوں, پاک روح کی مدد کو مانگتا ہوں, پاک روح کی ہدایت کو مانگتا ہوں. پاک روح میں اپنے آپ کو آپ کیا کہ سرنڈر کرتا ہوں اور آپ کی مدد کو مانگتا ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں خاک ہوں اور خاک میں لوٹ جاؤں گا. میں ایک کیڑا ہوں. خداوند پاک خدا مجھ میں اتنی حکمت اور دانائی نہیں, لیکن جب وہ پاک روح میرے اندر ہوتا ہے تو خداوند پاک خدا آپ حکمت اور دانائی بخشتے ہیں اور دلیری بخشتے ہیں, تاکہ خداوند ہم آپ کے کلام کو اس طرح سے بیان کریں جس طرح سے وہ ہے, کیونکہ وہ سچا کلام ہے, وہ لا تبدیل کلام ہے, وہ اثر دکھا کے رہتا ہے جس بھی روپ میں آتا ہے. خداوند پاک خدا میں اس لیے محنت کرتا ہوں. پاک روح میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ مدد میں رہنمائی کیجیے, کیونکہ آپ استادوں کے استاد ہیں اور میں ہمیشہ آپ کی ہی مدد اور قوت میں چلتا ہوں. اور میں آپ کو اپنی زندگی میں اور آج کی اس میٹنگ میں ویلکم کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ خداوند پاک خدا آپ کی حضوری میں یہاں موجود ہے, اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, جو سن رہے ہیں ان کی زندگی میں آج کے کلام جڑ پکڑے, اور پہلے خداوند جو اس کے بعد سنے وہ بھی اس سے برکت پائیں. خداوند یسوع مسیح کے نام میں اس دعا کو مانگ لیتے ہیں, آمین. کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ خداوند کے 10 احکام جو تھے ان میں سے دوسرا حکم کون سا تھا؟ کیا آپ میں سے کوئی اپنا مائک آن کر کے مجھے بتا سکتا ہے؟ خداوند اپنے خدا کا بے فائدہ نام نہ لینا. جی بیٹا آپ بتائیں. ہاں جی بیٹا آپ بتائیں اپنا. جی سارا. دوسرا حکم بتوں کی پوجا نہ کرنا. بتوں کی پوجا نہ کرنا, ٹھیک ہے. اچھا, اور کوئی؟ اوکے, لاسٹ ویک ہم نے کون سا حکم سنا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ لاسٹ ویک چلیں بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے ہم خدا ان کے زندہ کلام کی طرف پڑھتے ہیں. میرے حضور غیر معبودوں کا نام ماننا. غیر معبودوں کو نام ماننا. اوکے, تو پہلا حکم یہ تھا, ٹھیک ہے. اور دوسرا حکم یہ ہے کہ خروج 20 باب اور اس کی 4 آیت کو ہم دیکھیں گے. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. یہ یاد رکھیں, تراشی ہوئی مورت. جیسے بہن فرت نے بتایا کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا, یہ تیسرا حکم ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ہم نیکسٹ سیٹرڈے کو ہم جائیں گے. سیکوینس یاد رکھیں, سیکوینس 4 حکم جو ہیں وہ خداوند کے ہیں, ٹھیک ہے, جو خدا کے ساتھ بلونگ کرتے ہیں, اور 6 حکم جو وہ خدا اور انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ خدا اور انسان کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے. خدا پہلے اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہا ہے, اپنے آپ کو ڈسکرائب کر رہا ہے, اپنے بارے میں بتا رہا ہے. تو پہلے حکم ہم نے سیکھا
کہ تو اپنے پہلا حکم جو تھا وہ ہم نے تیسری آیت میں دیکھا تھا، میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، بیکاز کیونکہ دیر از اونلی ون گاڈ، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی یہوہ ہے، ایک ہی خدا ہے جس کا نام ہے، جو اپنے بندہ کو اپنا نام دیتا، میں جو ہوں سو میں ہوں. اوکے، سو دوسرا حکم خداوند نے بولا کہ تو کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. اب یہاں پہ اس کو ہم آگے تھوڑا سا بڑھیں گے اور ہم اس کو 6 آیت تک ہم پڑھیں گے. آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. خروج 4 باب اس کی 20 باب اس کی 4 آیت سے لے کے 6 آیت تک ہم پڑھیں گے. اگر بیٹا نوریا، اگر آپ بیٹا پڑھ سکتے تو آپ اس میں رہنمائی کرو، بیکاز آپ کی ریڈنگ بہت اچھی ہے آپ کی. ٹھیک ہے، پلیز پڑھو اس کو. خروج 20 باب اس کے 4 آیت سے لے کر 6 آیت کے آخر تک. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے اور ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکم کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں. آپ کان پہ پڑے سن رہے. آمین 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 آمین. یہاں پر اگر آپ کے پاس ہائی لائٹر ہے یا پین ہے تو اس کو کچھ مارک کیجیے گا. یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں، یہ مارک کرنے والے پوائنٹ ہے، اس کو مارک کر لیجیے گا. پہلی بات جو خداوند آیت نمبر 4 میں لکھتے ہیں، بولتے ہیں کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. اب یہاں پر ہم آج 2 چیزوں کو دیکھیں گے. ایک ہوتا ہے آئیڈل اور ایک ہوتا ہے اسٹیچو. ایک ہوتا ہے آئیڈل اور ایک ہوتا ہے اسٹیچو. آئیڈل وہ ہوتا ہے جب ہم کوئی تراشی ہوئی چیز کو بنا لیں یا کوئی مورت بنا لیں تو اس کو ہم سجدہ جو اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں، پوجنا شروع کر دیں، وہ ہوتا ہے آئیڈل. آئیڈل گاڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے اسٹیچو جس کو ہم مجسمہ کہتے ہیں. لیکن بائبل مقدس میں ہمیں ہر جگہ اسٹیچو کی جگہ بھی، یعنی کہ ہر جگہ بت ہی ملے گا. یعنی کہ اگر ہم کہیں بھی اگر کسی اسٹیچو کی بات ہو رہی ہے ہم اس کے اوپر بھی جائیں گے. اگر اسٹیچو کی بات ہو رہی ہے لیکن وہاں پر بھی ہمیں بت ملے گا، یعنی کہ وہاں پہ مجسمہ نہیں ملے گا. مجسمے بنے ہیں، مجسموں کا ذکر آئے گا. ابھی آج ہم اس کے بارے میں سنیں گے کہ کہاں کہاں خداوند نے خود حکم دیا کہ تراشی ہوئی چیز بنا لو. ٹھیک ہے. لیکن وہ مجسمہ سے کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسٹیچو. اور آئیڈل وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیں. اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے. ہم آگے بڑھتے ہیں. نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین میں، زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. اب 3 چیزوں کا یہاں پہ مزید ذکر ہو رہا ہے. آگے نوٹ کر لیں. آسمانوں یعنی کہ آسمان پر، نہ زمین پر جہاں پر ہم رہتے ہیں، نہ زمین کے نیچے یعنی کہ پانی کے نیچے. اور آسمان، زمین اور زمین کے نیچے، یہ 3 جگہ، یہ جو 3 پوائنٹ ہیں، یہ بار بار بائبل مقدس میں یوز ہوئے. میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، پھر اس کی ڈیٹیل میں بھی تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کیونکہ آج یہ ہمارا ٹاپک نہیں، اس لیے میں آج اس کی طرف نہیں بڑھوں گا. لیکن میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ کہاں کہاں یہ بار بار یہ پوائنٹ جو ہیں یہ استعمال ہوئے ہیں. فلپیوں دیکھیں گے، فلپیوں 2 باب اور اس کی 10 آیت. فلپیوں 2 باب اس کی 10 آیت. فلپیوں 2 باب اس کی 10 آیت دیکھیں گے. تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے. تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں. یعنی کہ مخلوقات جو ہیں وہ آسمان کے اوپر بھی ہیں، زمین پر بھی ہیں، اور زمین کے نیچے بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں. اور ان سب کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، وہ سب کچھ جانتے ہیں. اس لیے خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، فلپیوں 2 باب اس کی 10 آیت میں واضح طور پر لکھا کہ ہر ایک گھٹنا، بھلے وہ آسمان کے اوپر مخلوقات ہیں، بھلے وہ جو زمین کے اوپر یعنی کہ ہم لوگ، یا وہ جو زمین کے نیچے پانی کے اندر، سب کے گھٹنے جو ہیں، سب کے سر، سب کے گھٹنے خداوند یسوع مسیح کے آگے ہی جھکتے ہیں.
अब एक और रेफरेंस हम देखेंगे इसी बारे में, मुकाशवात 5 बाब उसकी 3 आयत को हम देखेंगे। मुकाशवात 5 बाब और उसकी 3 आयत को हम देखते हैं। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। अब यहाँ पर भी आसमान, जमीन और जमीन के नीचे की बात हो रही है, यानी कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मखलूकात पाई जाती हैं। सो वो सब खुदावन खुदा को, खुदावन यीशु मसीह को जानते हैं, खुदावन यहोवा पाक को जानते हैं। इसलिए कहा गया कि कोई तराशी हुई मूरत जो है ना आसमान पे बनाना, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे पानी में। तो ये एक अंडरस्टूड बात होगी कि हमने कोई भी ऐसा आइडल गॉड खुद हम हाथ से बनाकर उसको पूजना शुरू कर दें, ये खुदावन खुदा ने फरमाया है कि हमने नहीं करना। अब अगर हम करते हैं तो क्या होगा, नहीं करते तो क्या होगा। आगे लिखा है, तो तू उनके आगे सजदा ना करना, तू उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। अब यहां पर हमें 5-6 चीजें मिलेंगी, इसको जरा गौर कीजिएगा यहां पर इस आयत के अंदर। तो उनको पहले तो कहा कि आसमान जमीन या जमीन की जब में कोई तराशी हुई मूरत नहीं बनानी, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कि तू उनको सजदा ना करना। मिसाल के तौर पे, और किसी ने कोई आर्टिस्ट है, वो कोई बुत बना लेता है, और कोई अब दुनिया में बहुत सारे बेहतरीन किस्म के आर्टिस्ट लोग हैं, वो बुत बनाते हैं, स्टैच्यू बनाते हैं, मैं स्टैच्यू बोलूंगा, वो स्टैच्यू बनाते हैं और लोग उनको खरीदते हैं। और अगर कोई खरीद के ले आता है तो कल को उसका दिमाग घूम जाता है, उसका दिमाग अगर अपनी जगह पे कायम नहीं रहता और वो उसको ही खुदा समझने लग जाता है, उसके बारे में क्या लिखा है, तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं। अब गयूर लफ्ज जो है ये गैरत से निकला हुआ है। इसके बारे में अगर हम इंग्लिश की तरफ भी जाएं तो यहाँ पे एक जेलसी भी नजर आती है। आई एम लॉर्ड योर गॉड जेलसी गॉड, यानी कि खुदा जो है वो हसद अपने अंदर रखता है कि अगर उसको हम छोड़कर हम किसी और मबूद के पीछे चले जाएं, उसको सजदा करें, उससे हम दुआएं करें जो हमारे ही हाथों की बनाई हुई चीज हो, और जो ना देख सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, और ना कुछ कर सकती है, उसको हम सजदा करने लग जाएं जिंदा खुदा को। तो खुदा जो जिंदा खुदा है, जिसने हमें बनाया, हमें खलक किया, वो तैश में आता है, गुस्से में आता है, उसको फिर वो अपनी बनाई हुई, यानी कि हम लोग के ऊपर वो कुड़कुड़ाता है, गुस्सा करता है, नाराज होता है कि मैंने इनको इस मकसद के लिए बनाया था क्या, मैंने इनको इस काम के लिए बनाया था कि ये खुद अपने लिए खुद ही खुदा बना लें, गढ़ लें और उसकी इबादत करना शुरू कर दें। और फिर खुदा ने सजा भी मुकर्रर कर दी है। अब सजा ये नहीं कि मुझे आज ही सजा मिल गई बस खत्म, मुझे आज नहीं बल्कि मेरी 4थी पुश्त तक चलती है। अगर मैं आज माई सेल्फ, यानी कि मैं बैठा हूं और मैं आज खता करता हूं, मैं खुदा के जो गुनाह करता हूं, तो यानी कि अब से ही स्टार्ट हो जाएगी, मेरी 4th जनरेशन तक वो चलेगी। लेकिन अगर यही खता मेरे बाप दादा ने मुझसे पहले की, जिसको मैं नहीं जानता, उन्होंने अपनी जिंदगी में की है, लेकिन उसकी सजा अब तक चलती आ रही है, मुझे कैसे पता कि मेरे दादा ने या उनके बाप ने ऐसी खता की खुदा के हुजूर जिसकी सजा हम आज भी पा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे इसको जान सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा आगे चल के देखते हैं। सो खुदावंद अपने मुंह से फरमाते हैं, अपने जुबान मुबारक से फरमाते हैं कि मैं 3री 4थी पुश्त तक मैं उसको सजा दूंगा, और इसका रिवॉर्ड भी लिखा है। ये किन के लिए होगा सुनते हैं। 6 आयत में लिखा है, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम भी करूंगा, रहम करता हूं। अब यहां पर क्या है, जो खुदावन यीशु मसीह को से मोहब्बत रखते हैं, जो मोहब्बत रखते हैं उसके हुक्म को भी मानते हैं, और जो उसके हुक्म को मानते हैं खुदा उन पर रहम भी करेगा। ना सिर्फ रहम करेगा बल्कि उनको बरकतें भी देगा।
ईमानदार शख्स और एक ऐसा शख्स जो बदकार है या जिसकी जिंदगी में बदी है या जिसने खुदावंद से बगावत की है, उसकी जिंदगी में साफ 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 जो फर्क हमें नजर आता है, उससे उसको हम जज कर लेते हैं, वो हमें पता चल जाता है, क्योंकि खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। सो अब हम बढ़ते हैं आइडल और स्टैचू के बारे में। आइडल क्या है? मिसाल के तौर पे आप, मुझे नहीं पता कि मुझे कौन कौन सी डिनोमिनेशन सुन रही है, या मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, आपके पेरेंट्स बेटा कौन कौन से चर्च के साथ ताल्लुक है मुझे नहीं पता, लेकिन जो हकीकत है हम वो बताएंगे, जो खुदा का जिंदा कलाम कहता है हम वो सुनाएंगे, वो ही बताएंगे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस डिनोमिनेशन से है। अगर उसको बुरा लगता है तो वो हमें तो छोड़ दे, लेकिन खुदा के कलाम को रद्द नहीं कर सकता। कोई भी खुदा के कलाम को रद्द नहीं कर सकता। हमारे अपने अंदर ही ऐसे फिरके पाए जाते हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता, नहीं लूंगा, इसलिए क्योंकि इसके बारे में वो खुद जानते हैं। जब बात करूंगा वो अपने आप को पहचान लेंगे कि ये बात हमारे बारे में होती है। हमारे चर्चिस के अंदर ही, हमारे गिरजाघरों के अंदर ही हमने ऐसी तराशी हुई मूर्तें खुद बना बना कर, खुद महंगे दामों पे खरीद कर अपने चर्चिस को डेकोरेट किया हुआ है, ताकि लोग उसके ऊपर आते हैं, अपने दुपट्टे चढ़ाएंगे, चूमेंगे, अगरबत्तियां, मोमबत्तियां, और जो जो बत्तियां लगा सकते हैं बत्तियां कर दी उधर। लेकिन अगर देखा जाए कि क्या उनकी जिंदगी में इससे कोई फर्क पड़ा? जब खुदावन कहता है कि तुम मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, अंजील मुकद्दस में खुदावन यीशु मसीह खुद कहते हैं कि अभी तक तुमने मेरे नाम से बाप से कुछ नहीं मांगा, तो क्या खुदावन यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम मुकद्दसा मरियम का नाम लेके मांगना शुरू कर दो, या मुकद्दसा मरियम ने कहा है कि तुम सब मेरे नाम लेके खुदा से मांगो? ये वो बातें हैं जो हम नहीं जानते, ना हम समझते, ना हम इनके ऊपर गौर करते। बस भेड़ चाल हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। हम आगे जाके इसके बारे में थोड़ी सी और इसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये वो चीज है जिसको हम आइडियल गॉड कहते हैं। अब ये तो हो गया हमारा अपने घर का मसला, यानी कि हम मसीहियों का मसला। ये सिर्फ चर्चिस तक ही काम नहीं रहा, हमने वो स्टेचू उठा के ला के अपने घर में रख दिए, दीवारों पे लगा दिए हैं। हमारा यीशु मसीह सलीब से उतर के हमेशा हमेशा के जिंदा खुदा के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसा फिरका जिनका यीशु मसीह अभी भी सलीब के ऊपर ही है। उन्होंने अभी भी यीशु मसीह को सलीब के ऊपर रखा हुआ है और खुद अंधेरे में। बात यह है कि हमने अपने हाथों से खुद ही आइडल गॉड बनाए हुए। अगर हमें बनाना नहीं आता तो हम बाजार से खरीद कर ले आते हैं, हम बाजार से खरीद के ले आते हैं और अपने घर में ला के रख लेते हैं। और उस घर के अंदर अब सोचें कि खुदा की हम प्रस्तिश करते हैं, और कभी ऐसे भी लोग हैं जो उन्हीं के आगे सजदा कर रहे होते हैं, ला के रख लेते हैं, उन्हीं के आगे सजदा कर लेते हैं। बहुत से आजकल ऐसे काम शुरू हो चुके हैं। मैं इनको कुछ कहना नहीं चाहता, कोई और वर्ड्स खुदा माफ करे मैं यूज करना नहीं चाहता, लेकिन आप सब लोग जानते हैं। हम एक इसके बारे में यहाँ से रिलेटेड हम एक बात करेंगे, और जब उनसे बात की जाती है तो हमें बड़ा अच्छा से एक हमें आगे से पॉइंट दिया जाता है कि लो जी, कलाम मुकद्दस में खुदा खुद कहता है तराशी हुई मूर्तें। तो आए हम तराशी हुई मूर्तों के बारे में देखते हैं, तराशी हुई मूर्तें क्या है। गिनती की किताब उसका 8 बाब, उसका 21 बाब, उसकी 8 आयत को हम देखते हैं। गिनती की किताब उसका 21 बाब और उसकी 8 आयत के अंदर खुदा फरमाते हैं, तब खुदावन ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बलि पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उसे उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। यहां पर खुदा खुद कहते हैं, खुदा खुद फरमा रहे हैं कि तू एक पीतल का सांप यानी कि बना उसको और एक बलि के ऊपर लटका दे, ताकि जिस शख्स को सांप ने डसा होगा वो सांप उसको देखेगा तो वो बच जाएगा। अब खुदा ने ये तो नहीं बोल दिया ना कि तू उसको सजदा करना, या उससे तू मदद मांगना, या उसको तू पूजना शुरू कर देना। मुझे अगर मैं उस जमाने में होता हूँ, मैं अगर उसको देख लेता हूँ तो मैं शिफा पाता हूँ, तो मैं सुबह उठ के अगर उसको पूजना शुरू हो जाऊं। खुदा ने ये हुक्म तो नहीं दिया था मूसा को, ना लोगों को दिया था।
खुदा ने ये कहा था कि सिर्फ जो उसको देखेगा वो बच जाएगा। तो खुदा यहाँ पर खुद मूसा को हुक्म दे रहे हैं, लेकिन हुक्म दे रहे हैं कि बना के लगा दे। जब लोग ठीक हो गए तो क्या वो सांप वैसे का वैसे ही रहा? क्या लोगों ने उसको पूजना शुरू कर दिया? क्या लोग उसकी तस्वीरें बना के घर ले गए, या उसके तरह के और मुजस्समे बना के उन्होंने बना लिए और अपने घरों में लटका लिए? नहीं, वो खुदा का हुक्म था शिफा देने का, यानी कि कह सकते हैं ट्रीटमेंट, हम कह सकते हैं कि खुदा ने उनके लिए ट्रीटमेंट के तौर पर एक दवाई बना दी कि ये दवाई लेना है और आपने ठीक हो जाना है। इसको हम आसान वर्ड्स में ऐसे ले सकते हैं। एक और देखते हैं मुजस्मा, जो खुदावन ने मुजस्मा बनाने के लिए कहा। खरूज 25 बाब उसकी 18 आयत। आपके पास कालम मुकद्दस है, प्लीज देखें। खरूज 25 बाब उसकी 18 आयत। और सोने के 2 क्रोबी सरपोश के दोनों सरों पर घड़ कर बनाना। घड़ कर यानी कि तराश के, या उनको, अब जाहिर सी बात है, जैसे आप अगर आपने कभी अहद की संदूक की पिक्चर देखी हो तो उसके टॉप के ऊपर 2 फरिश्ते हैं और उन्होंने यूं पर फैलाए हुए हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, और उनके पर यूं फैले हुए और आपस में मिल रहे हैं। अब खुदावन ने, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि खुदा ने वो बंदा भी मुकर्रर किया हुआ था, उसको पता था, खुदा ने उसको रोया में बताया हुआ था किस तरह से ये बनेगा, किस तरह से होगा। तो खुदा यहाँ पे क्या कह रहे हैं मुकद्दस मूसा से? और सोने के 2 क्रोबी सरपोश के दोनों सरों पर घड़ कर बनाना। घड़ का मतलब होता है कि यू हैव टू मेक, लाइक आपको तराशना है उसको भी, ठीक है, यानी कि उसको डिजाइन किया जाएगा। जैसे हम स्टेचू को बनाते हैं, कोई भी किसी इंसान का स्टेचू बनता है या किसी चीज का स्टेचू बनता है, किसी परिंदे किसी चीज का स्टेचू बनता है, तो उसको तराशा भी जाता है, उसको निखारने के लिए उसको पॉलिश किया जाता है, उसके किनारे बनाए जाते हैं। तो खुदावन यहोवा पाक खुदा यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि उसको घड़ना। लेकिन अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं था कि हम ये उठ के कोई बात बोले, लोग उधर तो खुदा ने मना कर दिया क्योंकि तो राशि मूर्त नहीं बनाना, और अब यहाँ पर गढ़ने का, वहां खुदा कह रहा है कि तू बनाना नहीं बनाना, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, हमने बना के उसको पूजना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर खुदावन किसी और मकसद के लिए कह रहे हैं कि उनको बनाना, ये नहीं बोल दिया कि बना के उसको पूजना शुरू कर देना। तो इस बात को भी जेरे गौर रखें। अगर कल को कोई भी ऐसा पर्सन, चाहे वो मसीह कौम से ताल्लुक रखता है, चाहे वो गैर कौम से ताल्लुक रखता है, और आपसे कहता है, मेरे बच्चों ये बात बड़े गौर से सुनने वाली बात है कि आपका खुदा तो खुद कहता है, आपका यहोवा तो खुद कहता है कोई तराशी हुई मूर्त नहीं बनाना, और अगर उसने बनाई है, और ये देखो उसका ये एग्जाम्पल, वो आपको यही हवाले बता सकते हैं, इससे मिले जुले हवाले बता सकते हैं। सो आपको 10 से काम हमेशा आपको टिप ऑफ फिंगर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 टिप ऑफ फिंगर होना चाहिए कि खुदा अपने 10 से काम उसने दिए क्यों थे। इसलिए क्योंकि बनी इस्राएल कौम मिस्र में से निकल कर आई थी और उनके अंदर वो चीजें थी जो उन्होंने वहां से सीखी, अडॉप्ट की थी, उनके रगों में थी। खुदा उनके रगों में से चीजें निकालने के लिए 10 से काम से स्टार्ट किया था। सो एक और हम हवाला देखते हैं। खुदा, ये आपको एक वाकया याद होगा, जब खुदा का बंदा मूसा जब कोई सीना से, जब वो 2 लोहे यानी कि 2 तख्तियां जिनके ऊपर खुदा ने खुद अपनी उंगली से काम लिखे थे, और जब नीचे आता है खुदा का बंदा मूसा पहाड़ से, और सब कौम ने अपना हुलिया बिका लिया, उन्होंने वही बछड़े बना लिए, उनको पूजना शुरू कर दिया। जब 40 दिन के बाद खुदा का बंदा नीचे आता तो वो गुस्से में आके वो जो लोहे थी वो तख्तियां फेंक देता है, उनके ऊपर तोड़ देता है, यानी कि मैं तो खुदा ने तो सब कुछ दिया, नीचे आके देखा सब कुछ उन्होंने वही गंद कर दिया, तो गुस्से में आके तोड़ देता है। तो खुदा 34 आयत में खुदा अपने बंदा मूसा से फरमाते हैं, फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि पहली लोहों की मानद पत्थर की 2 लोहें, अब देखिए गौर कीजिए, खुदा खुद कह रहे हैं, पत्थर की 2 लोहें अपने लिए तराश लेना। अब तराश का लफ्ज भी हमें यहाँ फिर दोबारा मिला, यानी कि उसको डिजाइन करना, खुरेदना है उसको अच्छे तरीके से, वैसे ही जैसे पहले थी। पहले जो थी खुदा ने खुद बनाया, लेकिन मूसा ने देखी थी कैसी थी। अब खुदा खुद कह रहा है अपने बंदा से, तो वैसे बनाना, तराश लेना, और मैं उन लोहों पर वही बातें लिख दूंगा जो पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला मरकूम थी। सो खुदा यहाँ पर खुद अपने बंदा को फरमा रहे हैं कि तू
पहले की तरह वो जो लोहे तूने देखी थी वैसी ही डिजाइन कर दी कि वैसा ही सेम डिजाइन बना और मैं खुद उनके ऊपर लिखूंगा। ठीक हो गया। तो अब खुदा यहाँ पर फिर हुक्म दे रहा है कि तू तराश लेना, लेकिन ये नहीं कहा कि फिर वो मैं उनके ऊपर लिख दूंगा 10 काम तो दुनिया उसको पूजना शुरू कर दे, ये नहीं लिखा। अब ये तो वो चीजें होगी जो खुदा, ये यानी कि वो एविडेंस है खुदावंद के जिंदा कलाम में से आपको बताने का मकसद ये था ताकि आपको ये पता हो कि अगर कोई कल आपको कोई मिस कोट करना चाहे या आपको गलत फहमी में डालना चाहे तो आप उसको इस तरह से खुदा के कलाम में से आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नए अहदनामे के अंदर खुदा ने सजा क्या मुकर्रर की है और उनको किस कैटेगरी के अंदर रखा है। जो तराशी हुई मूर्तों को सजदा करते हैं, बुतों को मानते हैं, बुतों का झुकते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो नॉन क्रिश्चियन हो। अब देखते हैं खुदा ने उनको किसके अंदर रखा हुआ है, किस कैटेगरी के अंदर उनको रखा है। मेरे साथ निकालिए पहला करंथियन उसका 6 बाब उसकी 9 और 10 आयत निकालिए। पौलुस रसूल का खत, करंथियों का नाम, पहला खत उसका 6 बाब उसकी 9 और 10 आयत। आप ऐसे बेटा पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 9 और 10 आयत पढ़िए, अगर आपने निकाल लिया तो आप पढ़ सकते हैं बेटा। एक जमाना में शरीयत के बगैर में जिंदा था। नहीं बेटा, नहीं, पहला करंथियन उसका 6 बाब निकालिए और उसकी 9 और 10 आयत। नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। फरेब ना खाओ, ना हरामकारी खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुत परस्त, ना ज़नाकार, ना ऐश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जुल्म। खुदा उनके कलाम पर जी, खुदा उनके कलाम में क्या लिखा है? मैं पढ़ूं? जी, ये जी बिल्कुल पढ़ दें, जरा पढ़ दें, मैं थोड़ा सा मिस उधर हो गया हूँ। हाँ जी बिल्कुल। वर्स नंबर 9 and 10। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब जी बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो खुदा यहाँ पे अपने कलाम यहाँ पे पौलुस के खत में लिखा हुआ है 9वीं आयत के अंदर, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अब बदकार कौन है? पहले तो हम इस लफ्ज को देखते हैं, बदकार कौन है, हम बदकार किसको कहते हैं, बदकार के क्या मीनिंग्स है, हम किस सेंस में उसको लेते हैं। बदकार एक तो वो इंसान होता है जो बदी करता है, ये यानी कि किसी तरह की बदी उसके अंदर पाई जाती है, या किसी को झूठ बोल के वर्गलाना, या किसी को बुरे कामों के ऊपर उकसाना, या किसी के साथ बदी करना, यानी कि कोई भी बुराई जिसके अंदर पाई जाती है वो बदकार ही कहलाता है। जिसके अंदर किसी तरह की बुराई है उसको बदकार ही कहेंगे हम। तो खुदावंद क्या कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, जिसके अंदर बदकारियां हैं। अब सुनिए गौर से, फरेब ना खाओ, ना हरामकार। अब फरेब खाने का मतलब क्या है कि ये नहीं समझना कि अगर इसमें से इन बातों में से कोई छूट गया है तो वो बदकार नहीं है। अब भी हम सुनते हैं कि वो कौन कौन है। ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त। अब ये देखिए बुत परस्त का लफ्ज यहाँ पे आ गया है और ये उसी से रिलेट करता है जिसके बारे में खुदावंद के 10 काम है और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हुक्म है इसी के मुतालिक। बुत परस्त, ना ज़नाकार, ना अय्याश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। अब हमारी जो कॉमन हम अपनी लाइफ में देखते हैं, डेली की रूटीन के अंदर हम लोग गालियां पकने वाले थे। हम गालियां तो बात पैसे देते हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं। हम रोटी 3 टाइम खाते, लेकिन गाली 24 घंटे देते हैं। तो खुदा के जिंदा कलाम के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है, गाली देने वाला भी खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा और शराबी भी नहीं होगा। यानी कि शराब, अगर कोई हम में से कोई शराब पीने वाला सुन रहा है तो वो भी इस बात को अपने ज़हन में रख ले कि शराबी भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, चाहे वो कितनी यकीन देता है,
चाहे वो कितने हथियार डालता है, चाहे वो कितने खादिमों की खिदमत करता है, चाहे वो चर्च में कितनी देखे देता है, चाहे वो मुकद्दसा मरियम के ऊपर कितनी चादर चढ़ाता है, वो भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बुत परस्ती कर रहे हैं। अब इसके जिनाकार और इयाश, जिनाकार और इयाश कौन लोग होते हैं? यानी कि पैसे की फरावानी उसके पास है और वो गलत कामों के ऊपर पैसों को लगाते हैं। यानी कि पैसा दे के किसी के ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया, पैसा दे के पुलिस को किसी को फंसा दिया, पैसा देकर किसी के साथ बदकारी कर ली। ये सब वो बंदे हैं जो इयाश कहलाते हैं, जो शराब पी ली, नशा कर लिया, नशाबाजी होगी, ये वो लोग हैं। अब एक मिसाल देते हैं, जिनाकार कौन शख्स होता है? जिनाकार इज इक्वल टू बुत परस्त, यानी कि जिनाकार और बुत परस्त एक जैसे ही लोग हैं। अगर एक बुत परस्त है वो जिनाकार के बराबर उसको समझा जाता है कि अगर एक जिनाकार बंदा है या जिना करता है या करती है, वो बुत परस्ती के बराबर है। मिसाल के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह हमें दुल्हन, हम क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है। हम गीत गा रहे हैं कि दूल्हा चला आ रहा है, ठीक है, देखो दूल्हा चला आ रहा है, क्योंकि हम दुल्हन है ना। मुकाशवे की किताब में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि कलीसिया खुदा की दुल्हन है और हम दुल्हन है खुदा की। अगर कोई शख्स जो शादीशुदा है वो अपनी बीवी से धोखा करे और जिना करे, वो बुत परस्ती में शामिल होता है। और अगर कोई बीवी अपने शौहर को छोड़ के वो किसी और मर्द के साथ जिना करे तो वो भी बुत परस्ती होती है, यानी कि इक्वल टू बुत परस्ती है। खुदा हमारा खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन, खुदावंद यीशु मसीह हमारा दूल्हा, और दुल्हन उठ के किसी और माबूद के पीछे लग जाए तो फिर क्या होगा? कि फिर क्या? फिर बदकारी होगी, फिर ज़नाकारी हो गई। सो इज इक्वल टू ज़नाकारी। अब जो शादीशुदा नहीं है, अगर वो भी ज़नाकारी करते हैं तो वो भी बुत परस्ती में ही आता है। उनका भी रोल इक्वल टू बुत परस्ती है, वो भी इक्वल टू रूल बुत परस्ती है, तो ये बुत परस्ती में ही काउंट होगा। अब हम देखते हैं, आखिरी अब क्लोजिंग तरफ जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि काफी लंबा हो गया, लेकिन जरूरी बातें हैं। क्या हम लोगों के अंदर बुत परस्ती पाई जाती है? आप में से बता सकते हैं, क्या हम लोग बुत परस्त हैं? क्या हम लोग बुत परस्त हैं? हाँ बच्चों, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं बेटा। नहीं है जी। वैन फरद? जी बिल्कुल है। बिल्कुल है जी। सुंबल? जी हम मुख्तलिफ तरीकों से हैं। जी हैं। ओके ओके। सो हम बुत परस्त हैं बेटा। आप देखिए, आप गौर कीजिए बुत परस्त कैसे हैं। आप स्कूल जाते हैं, अगर आप अपने टीचर्स की बातों को फॉलो नहीं करते या अपने टीचर्स की बुराई करते हैं और कोई ऐसा काम करते हैं जो खुदा के हुक्म के अगेंस्ट है, तो वो बुत परस्ती में आता है। अगर आप चोरी करते हैं तो बुत परस्ती में आता है। अगर आप लालच करते हैं किसी चीज का तो वो बुत परस्ती में आता है। क्या कभी आपने किसी चीज का लालच किया? लाजमी किया। कोई इस बंदे इस बात से इनकार ही नहीं कर सकता, तो वो क्या हो गया? बुत परस्ती में आता है। ये वो आइडल गॉड है जो हमने अपने अंदर तराशे हुए हैं। कोई अच्छी चीज देख ली तो ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, ये आइडल गॉड है, ये हमने अपने अंदर तराशे हुए बुत है हमारे अंदर, और हम फिर उसकी प्रस्तुति इस तरह से करते हैं कि हम उस चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो वो हम उसकी पूजा कर रहे होते हैं, जो हमने अपने अंदर बुत बना लिए होते हैं। हम उसकी फिर प्रस्तुति कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से वो हासिल हो जाए। हम सोच रहे होते हैं, हम हर वक्त उस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, तो ये हमारे अंदर बुत बने होते हैं। ये तराशे हुए बुत है जो हमारे अंदर है, जो फिजिकली हमको नजर नहीं आते लेकिन इनविजिबल वो हमारे अंदर रहते हैं बुत, और हम उसकी फिक्र में ही लगे रहते हैं, हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। तो ये वो बुत है जो हमारे अंदर है। इसलिए अगर आपके अंदर गालियां अगर आप लोग देते हैं या आप कोई भी ऐसा काम जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है, तो वो आपके अंदर एक तराशा हुआ बुत है। और हमने क्या पढ़ा था? ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे कोई तराशी हुई मूर्त नहीं बनाना। तो अगर हम, ये तो बहुत आगे की बातें, हम पहले अपने आप को एनालिसिस करें, हम अपने अंदर देखें क्या हमने तराशी हुई मूर्तें बनाई हुई हैं, क्या हमारे अंदर है, क्या हमारे अंदर लालच के बुत हैं जो हमने तराश लिए हैं, क्या हमारे अंदर जना का बुत है, क्या हमारे अंदर गालियां देने वाला बुत है, क्या हमारे अंदर शराब का बुत है। एक बात बड़ी मशहूर है कि पंजाब के अंदर जो है ना
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਬੜੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਬਹੁਤ ਮशहूर है। अब तो वो बुत मैंने बड़े कम हो गए हैं, अब नए किस्म के बुत आ गए हैं। जब हम छोटे हुआ करते तो हम देखते कि हर बाबे चाचे का झुका ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਂ झुका ਹੁੰਦਾ ਸੀ, तो जिथे जाना ਨਾਲ हुक्का चुके ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। अब तो हुक्के छोटे हो गए हैं, अब ये वाले हुक्के हो गए हैं, और ये वाला हुक्का होता था। और मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है कि उस हुक्के की इतनी ताजीम होती थी, इतनी ताजीम होती कि नवान रोज नवाते सन, रोज रोज पानी बदली होਣ ਡਿਆ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਤੰਬੂਕੂ ਪਾ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਗੁੜਗੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਧੁੱਪ, मैंने अपनी आंखों से देखा कड़क धुप लगी हुई है, बाहर निकलो पिंडा सड़ जाएगा, इंज धुप मुंह ते वजे गिले कि धुप्पे उन्होंने अग जरूर बालनी है कि असि हुक्का गर्म करना है। और बाबिया ने इंज एक हत्थ च फड़े हुंदा सी ते ओरी अपने की हुंदी सी ओ पाइप और मूंह वाल हुंदा सी, नाल तुरा गुड़ गुड़ करदे जाना, नाल तुरे जाना, नाल गल करदे जाना, दो गल्लां करनी, चार दफा गुड़ गुड़ करदा। यानी कि ओ बुत पिंडा च इन्ना मशहूर सी, लेकिन हुण बुत चेंज हो गया। हुण बुत आ गया सिगरेट वाला बुत आ गया, हुण बुत होर किस्म दे आ गए ने। ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਤ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਯਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਸ਼ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬੁੱਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ किस रंग ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। अक्सर मैं इसको अब यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, दो आखिरी बातें बोलकर, और एक हवाला मेरे साथ निकाल लीजिए, मैं इसको निकाल बल्कि देख लेते हैं, फिर इसके बाद ये आखिरी आयत है, फिर इसके बाद हम क्लोज करेंगे। रोमियो उसका पहला बाब, उसकी 25 आयत। इसके बाद हम सरमन को फिर हम वाइंड अप करते हैं। 25 आयत में ये लिखा है इस तरह से, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा प्रस्तिश और इबादत की बानिस्बत उस खालिक के जो अब तक मबूद है। आमीन। यानी कि ये वो बात आ गई जिसकी मैं बात भी कर रहा था कि हमने इन चीजों को हमने इनकी इतनी ज़रा प्रस्तिश शुरू कर दी, नशे की, शराब की, सिगरेट की, हुक्कों की, और पता नहीं तरह तरह की चीज़ें। यानी कि इसके अंदर मूवी की एडिक्शंस भी आ चुकी है, वो भी हमारे अंदर एक बुत है कि मूवी देखे बगैर गुजारा। मैं अपनी एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने जनवरी से वेब सीरीज छोड़ी है। जनवरी से मुझे वेब सीरीज की इतनी एडिक्शन थी कि मैं हर वेब सीरीज के आने का इंतजार करता था, इतनी ज्यादा। तो मैंने अगर जनवरी से वेब सीरीज देखना छोड़ दी है, या अगर मैंने गाने सुनना छोड़ दिया, तो मैं मर नहीं गया। खुदा ने मुझे कि नई चीज दे दी मुझे, ठीक है। मैं खुदा से हर वक्त गीत सुनने, कलाम सुनना है, ठीक है। मैंने तो मूवीज देखना छोड़ दी। मूवीज देखना भी एक एडिक्शन है, ड्रामे देखना भी एक एडिक्शन है, वो भी एक नशा है। स्टेज शो देखना भी एक नशा है। लो ये तो मजाक करते पे ने। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ज़बूर वो खताकारों की जमात पे खता करके राहों में नहीं बैठता। और ऐसे स्टेज शो जिनकी जो हम लोग घंटों घंटे बैठ के हंस के देखते हैं, वो 2-3 घंटे का मजा होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन खुदा की नजर में हम कितने गुनाहगार बन जाते हैं। ये भी एक नशा है, ये भी एक बुत है जो हमारे अंदर से निकलता नहीं, जिसको हम निकालना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि हम नशा छूटता नहीं है, मुझे सिगरेट नहीं छूटती। हम कहते हैं तो सिगरेट नहीं छूटती, मुझसे पान नहीं छूटता, मुझसे गुटखा नहीं छूटता, मुझसे नस्वार नहीं छूटती, मुझसे गालियां नहीं छूटती। ये सब वो बुत है जो हमने तराश के उनको निखार के अपने अंदर रखा हुआ, हम निकालना नहीं चाहते। और खुदावन ने इसलिए कहा है कि कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना। और हमने कितनी तराशी हुई मूर्तें बनाई हैं, हमारे अंदर कितने बुत हैं। आज हमें गौर करने की जरूरत है और फिक्र करने की जरूरत है कि खुदावन का कलाम बार बार हमें ये बात सिखा रहा है, और हम किस जगह पर हैं, हम खुदा के कलाम को कितना लाइट ले रहे हैं। एक एक बुत का हिसाब हमें देना पड़ेगा। जब खुदावन यीशु मसीह आएंगे, जब हिसाब किताब होगा, हम एक एक बुत का हिसाब देंगे जिसको हमने तराश के अपने अंदर रखा हुआ है। चाहे वो मूवीज का है, चाहे वो सॉन्ग्स का है, चाहे वो कार्टून्स का है, चाहे वो ड्रामों का है, चाहे वो स्टेज शो का है, चाहे वो शराब का है, नशे का है, सिगरेट का है, पान का है, नस्वार का है, चाहे जितनी भी चीजों का आप नाम ले लें, ये सारे बुत हमारे अंदर हैं। तो खुदावंद आप सबको
तमाम इन बुतों को अपने नजर से निकालने की तौफीक बख्शे आज के कलाम की वसीला से। आज आपने खुदावन के 10 हुक्मों में से दूसरे हुक्म को सीखा है, और मैं ईमान और यकीन रखता हूं कि खुदावन ने आज आपके दिलों में इस हुक्म को अच्छे तरीके से समझने की आपको तौफीक दी है। इस पर अमल कीजिए और खुदावन के जिंदा नाम को, उसके नाम को जला दीजिए और साबित कर दीजिए कि आप सच्चे मसीही हैं और आप मसीह के फॉलोवर हैं और आप खुदा के 10 हुक्मों पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब आप कोशिश करेंगे तो खुदा आपको तौफीक देगा। खुदा यीशु मसीह आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।